بسم اللہ الرحمن الرحیم غلطی مان لینے کی ہمت ایک مفصل مضمون تقریباً الفاظ تعارف انسانی زندگی میں غلطیاں کرنا فطری ہے یہ وہ تجربات ہیں جو ہمیں سکھاتے ہموار کرتے اور بہتر بناتے ہیں مگر غلطی کرنا ایک بات ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا بالکل دوسری غالباً اسی دوسری بات میں وہ ہمت عزت نفس اور اخلاقی نکھار چھپا ہوتا ہے جو کسی فرد قوم کو مضبوط بناتی ہے غلطی مان لینا نہ صرف شخصیت کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ تعلقات کام کی جگہ تعلیم اور معاشرے صحت کے لیے بھی بنیادی قدر رکھتا ہے اس مضمون میں غلط مان لینے کی ہمت کے معنی اس کی ضرورت فوائد رکاوٹیں اور عملی طریقے تفصیل سے بیان کریں گے ساتھ ہی حقیقی زندگی کی مثالیں اور عملی مشورے بھی دیں گے تاکہ قاری خود اپنے دل میں اس ہمت کو پروان چڑھا سکے غلط مان لینا مانی اور نفسیاتی بناد غلط مان لینا دراصل اپنے کیے کی ذمہ داری قبول کرنا ہے یہ قبولیت کسی کا اخلاقی ذہنی اور جذباتی عمل ہے جس میں فرد تسلیم کرتا ہے کہ اس نے کچھ غلط کیا اس غلطی کے نتائج ہوئے اور وہ اس کا ازالہ تلافی کرنے کی کوشش کرے گا صاف طور پر یہ عمل خود آگاہ خود قبولیت اور ایمانداری انٹیگریٹی کے ملاپ سے جنم لیتا ہے جب انسان اپنی حدود کو پہچان لیتا ہے اور اپنی خامیوں کو قبول کرتا ہے تو وہ تبدیل ہونے اور بہتر بننے کے لیے راستہ کھول دیتا ہے سوسائٹی اور اخلاقیات میں غلطائیں لینے کی ہے معاشرے میں اعتماد اور تعاون کا دار و مدار شفافیت اور صداقت پر ہوتا ہے جب لوگ غلطی چھپاتے ہیں یا دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا کر اپنا گلہ صاف کرتے ہیں تو رشتے کمزور ہوتے ہیں ٹیم ورک متاثر ہوتا ہے اور غلطیوں کا دور چلے جاتا ہے اس کے برعکس جب فرد ادارہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو دوسروں میں اعتماد بحال ہوتا ہے مسائل کا حل جلدی سامنے آتا ہے ذمہ داری کا ثقافتی اصول مضبوط ہوتا ہے اور اخلاقی معیار بلند ہوتا ہے تین قائدانہ خصوصیات اور غلطی ماننے کی ہمت ایک اچھا قائد وہی ہے جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے قائدین کے ساتھ اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب وہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کی بجائے تسلیم کریں اور درست راہ دکھائیں تاریخ میں ہمیں ایسے قائدین کے بہت سے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے اپنی ٹیم کی وفاداری اور عزت حاصل کر لیڈر جب غلطی مان لیتا ہے تو اس عمل سے ایک پیغام جاتا ہے کہ غلطی انسانیت کا حصہ ہے اور ہم سیکھ کر بہتر ہو سکتے ہیں چار ذاتی فائدے خود کی بہتری کے لیے اعتراف کی اہمیت غلطی مان لینے کے بہت سے ذاتی فوائد ہیں سکون قلب جھوٹا بہانے دل میں گھٹن پیدا کرتے ہیں اعتراف کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے سیکھنے کا دروازہ غلطی تسلیم کرنے کے بعد ہی ہم غلطی کا جائزہ لے کر سبق حاصل کر سکتے ہیں ذمہ داری کا احساس اعتراف ذمہ داری کے جذبے کو مضبوط کرتا ہے اور مستقل بہتری لاتا ہے رشتوں میں پائیداری جب آپ اپنی غلطی مان لیتے ہیں تو آپ کے رشتہ دار اور دوست آپ پر مزید اعتماد کرتے ہیں رکاوٹیں لوگ اپنی غلطیاں کیوں نہیں مانتے اگر غلطی مان لینا اتنا فائدہ مند ہے تو لوگ پھر کیوں ہچکچاتے اس کے کئی نفسیاتی اور معاشرتی اسباب ہیں غرور و انا خود کو کمزور دکھانے سے خوف شرمساری معاشرتی رسوائی یا تنقید سے ڈر ذمہ داری سے فرار نتائج بھگتنے کا خوف معاشرت پیشہ ورانہ سزا ملازمت اساتذہ میں نقصان کا اندیشہ تعلیم تربیتی کمی بعض لوگ اعتراف اور اصلاح کی مہارت سے ناخواندہ ہوتے ہیں ان رکاوٹوں کو پہچانا اور ان کے خلاف تربیت فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ غلطی ماننے کی ہمت حاصل کر سکیں غلط مان لینا مختلف شعبوں میں مثالیں خاندانی زندگی شوہر اور بیوی کا جھگڑے کے بعد اپنی غلطی مان لینا تعلقات میں محبت اور اطمینان لاتا ہے طالب علم جب غلطی تسلیم کرتا ہے تو وہ استاد کے ساتھ زیادہ تعاون کرتا اور سیکھنے کے عمل میں تیزی آتی ہے کاروبار و ادارے کمپنی جب خراب پروڈکٹ کے لیے معافی مانگتی ہے اور مسئلہ حل کرتی ہے تو صارفین کا اعتماد بڑھتا ہے سیاستدان جب غلطی پر معافی مانگتا ہے تو سیاسی شفافیت اور اخلاقی معیار مضبوط ہوتے سلامی اور اخلاقی نقطۂ نظر اسلام میں سچائی معافی اور خود احتسابی پر زور دیا گیا ہے نقائص کا اقرار اور توبہ ایک اہم روحانی صفائی ہے فرد کو اخلاقی بلندی تک پہنچاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت اور صحابہ کرام کی مثالیں ہمیں دکھاتی ہیں کہ جب کسی نے غلطی کی تو اس کا اقرار اور اصلاح ہی اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اسی طرح دیگر مذاہب اور اخلاقی نظام بھی تابدارہ حق اور شرافت کو اہمیت دیتے ہیں ہاں ہم عمومی اخلاقی اصول بیان کر رہے ہیں اگر مخصوص حوالہ جات احادیث چاہیے تو صارف بت الف سکتا ہے
8 गलती का एतराफ़ अमली तौर तरीक़े गलती मान लेने में हिम्मत पैदा करने के लिए दर्ज झैल अमली अक़दार और मशक़ें मुफीद हैं। 1. खुद पर गौर व फ़िक्र। रोज़ाना चंद लम्हे अपने दिन का जायज़ा लें। क्या मैंने किसी से गलत सलूक किया? क्या मैंने कोई ज़िम्मेदारी टाल दी? खुद शनासी गलती तस्लीम करने का पहला कदम है। 2. गलती को नाम दे, बहाने नहीं, अमूमी बातों बहानों से ग्रेज़ करें। वाज़े अल्फाज में कहिए, मैंने गलती की। इस सादगी में क़ुव्वत ही फ़राए तस्लीम करें, ताख़ीर न करें। गलती तस्लीम करने में ताख़ीर गुनान इख़्लाक़ी बुनती है। जल्दी एतराफ़ करने से नुकसान कम होता है और एतबार बहाल होता है। 4. मुआफ़ी मांगें और अज़ाला करें। सिर्फ अल्फाज काफ़ी नहीं, मुआफ़ी के साथ अमली तलाफ़ी भी ज़रूरी है। खसारा पूरा करें, वदा करें और उस पर अमल करें। 5. सीखने का मंसूबा बनाएं। गलती से सबक लेते हुए आइंदा के लिए एक अमली मंसूबा बनाएं ताकि वही गलती दोबारा ना हो। 6. दूसरों की हिमायत पैदा करें। अगर आप किसी ऐसे माहौल में हैं जहां गलती मानना खतरनाक महसूस होता है तो पहले छोटे कदम उठाएं। एक काबिल एतमाद साथी से बात करें और उसके जरिए एतमाद बहाल करें। 7. अच्छी गुफ्तगू और टोन। एतराफ़ करते वक्त नरम लहजा और मुनासिब अल्फाज इख्तियार करें। दिफाई रवैया इख्तियार करने से बात बिगड़ सकती है। 9. इदारा जाती सतह पर गलती मानने की हौसला अफजाई। इदारे किस तरह एक ऐसी सकाफत बना सकते हैं जहां गलती का इकरार खौफ के बगैर हो सके। गलती सीखने का मौका समझी। गलती को सज़ा देने की बजाय सीखने के लिए मौक़े बना। शफ़ाफ़त और जवाबदेही निज़ाम बनाएं जिसमें गलतियों की रिपोर्टिंग महफूज हो। बिला खौफ रिपोर्टिंग ओ मिसाली क़यादत। लीडर्स खुद अपनी गलतियों का एतराफ़ करें तो माहौल में तब्दीली आए। गलत रिपोर्टिंग के बाद इस्लाही इक़दामात। सिर्फ रिपोर्टिंग काफ़ी नहीं, इस्लाह और तलाफ़ी ज़रूरी है। नामात बराए शफ़ाफ़ियत। वो अफराद टीमें जिन्होंने गलती अलानिया तस्लीम की और मसला हल किया उनको तस्लीम करें। 10 हकीकी ज़िंदगी की चंद मिसालें, आम और अमली। तालीमी मिसाल। एक उस्ताद ने इम्तिहान में गलती से सवालात की दर्जा बंदी में गलती करदास ने फ़ौरन क्लास से मुखातिब होकर मुआफ़ी मांगी। एक इजाफ़ी तालीमी नशिस्त रखी और दुरुस्त इस्लाकात से तलबा में एहतराम और एतमाद। बुरे कारोबार मिसाल। एक छोटी कंपनी ने नया प्रोडक्ट मार्केट किया मगर मेयार में खामी थी। कंपनी ने अवामी तौर पे एतराफ़ किया, रिकॉल किया, नुकसान मुआवजा दिया और आइंदा मेयार कंट्रोल की पॉलिसी अपनाई। नतीजा तवील मुद्दत में कंपनी का ब्रांड मजबूत रहा क्योंकि सार्फिन ने शफाफियत को सराहा। खानदान मिसाल। वालिद ने गुस्से में बच्चे पर सख्ती की और बाद में महसूस किया कि वो झाड़ बहुत ज्यादा। त्यास ने बच्चे से मुआफ़ी मांगी, बात की और फिर वदा किया कि अगली बार पुरसुकून अंदाज इख्तियार करेगा। रिश्ता बेहतर हुआ और बच्चे ने वालिद की जिम्मेदारी कदर की निगाह से देखी। 11. गलत मान लेने के बाद खुद को मुआफ़ करना। कभी कभी हम जब किसी गलती का एतराफ़ कर लेते हैं तो अंदर से खुद को मुआफ़ नहीं कर पाते। खुद मुआफ़ी भी ज़रूरी है। एतराफ़ और इस्लाह के बाद खुद को मुआफ़ करें, इससे कुर्रियती तवानाई दोबारा बहाल होती है और आप मुस्बत कदम उठाने के काबिल बन जाते हैं। 12. नौजवानों और बच्चों में ये हुनर कैसे सिखाएं? मॉडलिंग। बालगैन खुद मिसाल बने, बच्चों को अपनी गलती बताएं और मुआफ़ी मांगें। तरबियती सरगर्मियाँ। स्कूलों में रूल प्ले के जरिए बच्चों को गलती तस्लीम करना सिखाएं। मुस्बत फीडबैक। जब बच्चे अपनी गलती बताएं तो तनकीद से बचें और तारीफ करें। खुद एहतिसाबी की आदत। रोज़ाना हफ्तावार खुद एहतिसाबी के सेशन रखें। 13. गलती मानने की हिम्मत में सकाफती फ़र्क। मुख्तलिफ सकाफ़तों में गलती तस्लीम करने के बारे में रवैये मुख्तलिफ होते हैं। कुछ सकाफ़तें फ़ीस से पर जोर देती हैं और इसलिए अफराद गलती छुपाते हैं, जबकि कुछ सकाफ़तें शफाफियत को तरजीह देती हैं। इस फ़र्क को समझना कलीदी है ताकि हम मुनासिब हिकमत अमली वज़ा करें और सकाफ़ती हसासियत के बावजूद इख़्लाक़ी मेयार बरकरार रहें। 14. नतीजा एक दावत बराए अमल। गलती मान लेने की हिम्मत सिर्फ एक अमल नहीं, ये एक ज़िंदगी का नज़रिया है। ये हमें आजिज़ी, शुजाअत और सच्चाई की राह पर गामज़न करती है। गलती एक मौका है बेहतर बनाने का, सीखने का और ताल्लुकात को मजबूत करने का। अगर हर फर्द अपनी छोटी बड़ी गलतियों का एतराफ़ कर ले तो न सिर्फ फ़र्द खुद बेहतर होगा बल्कि पूरा मुआशरा इख़्लाक़ी, शफ़ाफ़ और तरक्की पसंद होगा। खुलासा चेकलिस्ट। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में वो गलती मान लेने की हिम्मत अपनाना चाहते हैं तो ये चंद फौरी इक़दामात आज ही से इख्तियार करें। 1. रोज़ाना 5 मिनट खुद एहतिसाबी करें। 2. जब किसी गलती का एहसास हो तो फ़ौरन वाज़े अल्फाज में एतराफ़ करें। 3. मुआफ़ी मांगें और अमली तलाफ़ी का इरादा ज़ाहिर करें। 4. एक बार मुआफ़ी मांग लेने के बाद खुद को माफ़
और सीख कर आगे बढ़। 5 दूसरों की गलतियों पर रहम करें और उन्हें सीखने का मौका दें। इख्तितामी कलिमात। दिल की सच्चाई, अज़्म और मकसदियत वो सुकून हैं जो गलती मान लेने की हिम्मत को हकीकत में बदलते हैं। हर इंसान गलतियां करेगा, एक तब्दीली की कुदरती ज़ुबान है, मगर जो लोग अपनी गलतियों को छुपाने की बजाय कबूल करते हैं और उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, वही आखिर में कामयाब मुअज़्ज़ज़ है, काबिल एतमाद रहते हैं। आए हम सब मिलकर एक ऐसी सकाफत बनाएं जहां एतराफ़, इस्लाह और मुआफ़ी को इज़्ज़त दी जाती हो, क्योंकि यही रास्ता है ज़ाती सुकून, समाजी भलाई और हकीकी तरक्की का। वस्सलाम। अगर आप चाहें तो मैं इस मज़मून को आपके मतलूबा अल्फाज एग्जैक्ट काउंट के साथ दुरुस्त करके अल्फाज की गिनती के करीब बना कर दे दूँ। इसका खुलासा सुन फ़िक्र के निकात बच्चों के लिए आसान शक्ल में तब्दील कर दूँ। गलती मान लेने की हिम्मत। तकरीबन अल्फाज। इंसानी ज़िंदगी में गलतियाँ करना फितरी और नागज़ीर है। हर आदमी, चाहे वो तजर्बाकार और आजिज़ हो या कम तजर्बा और मगरूर, कभी ना कभी गलती करता है। इससे भी ज़्यादा अहम वो अमल है जो गलती के बाद किया जाए, यानी गलती मान लिया। तस्लीम करने की हिम्मत न सिर्फ फ़र्द की इखलाकी बुलंदी का मज़हर होती है, बल्कि ये ताल्लुकात, पेशा वराना तरक्की और ज़ाती नशोनुमा के लिए भी ज़रूरी है। इस मज़मून में हम गलती मान लेने की अहमियत, इसके नफ्सियाती और समाजी पहलू, रुकावटें, फ़वाइद और अमली तरीक़े पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तारुफ। हिम्मत की एक पुरसुकून शक्ल। हिम्मत के बारे में अक्सर हम वो तस्वीरें देखते हैं जिनमें कोई बहादुर आदमी खतरे का सामना करता है या किसी बड़े फैसले के लिए कदम बढ़ाता है, मगर हिम्मत की नर्म और पुरसुकून शक्ल भी इतनी ही कदर वाली है, यानी अपनी गलती तस्लीम करने की हिम्मत। ये वो लम्हा है जब इंसान ने अपनी अना को पीछे रखकर अपने फेल की जिम्मेदारी कबूल की। ये अमल फौरी तौर पर दुख या कमजोरी का इकरार लग सकता है, मगर दर हकीकत ये खुद बातिनी और इखलाकी कुव्वत की अलामत है। क्यों गलती मानना मुश्किल होता है? कई नफ्सियाती और समाजी अवामिल गलती मानने में रुकावट बनते हैं। एक, अना, ईगो और फ़ख्र। इंसान अपनी शनाख्त और खुद एतमादी को बचाने के लिए तस्लीम करता है कि वो हमेशा दुरुस्त है। गलती मानने से वो अपनी कमजोरी का एतराफ़ महसूस करता है, जो उसके नफ्स के खिलाफ जाता है। 2, शर्मिंदगी और खौफ। रद्द अमल। ये खौफ कि दूसरों की नज़र में हमारी हैसियत कम हो जाएगी या लोग हमें कम अक्ल समझेंगे, हमें गलत छुपाने पर मजबूर करता है। 3, नताइज का खौफ। कुछ सूरतों में गलती मानने से अमली नुकसान भी हो सकता है। नौकरी में मसला, रुतबे में कमी, आज़ादी ताल्लुकात में इख्तिलाफ। इस खौफ से लोग दिफाई रवैया इख्तियार करते हैं। 4, समाजी फिशार। बाज़ मुआशरों या इदारों में गलती को कबूल करना कमज़ोरपन समझा जाता है, इसलिए लोग गलती छुपाने या दूसरों पर इल्ज़ाम डालने को तरजीह देते हैं। 5, आदत और गुर्र। जो लोग तवील अरसे से गलतियों को कबूल नहीं करते, उनके लिए ये अमल दुश्वार तर होता है, क्योंकि वो इस रवैये के आदी हो जाते और गलत मानने के इखलाकी और मज़हबी पहलू। बुनियादी इखलाकी तालीमात में गलती मानना फजीलत समझा जाता है। इस्लामी तालीमात में तो तौबा और इस्लाह का बड़ा मकाम है। जो शख्स सच्चाई से अपनी गलती तस्लीम करता है और अल्लाह से मुआफ़ी मांगता है, इसकी तौबा कबूल होती है, बशर्ते कि वो मुस्तकिल ना हो और दिल से नादिम हो। इसी तरह दीगर मजहबी और इखलाकी निज़ाम भी सच्चाई, आजिज़ी और इस्लाह नफ्स की तलकीन करते हैं। सच बोलना, हुकूक की अदायगी और इंसाफ के तकाज़े गलती मानने से जुड़े हैं। जब आप गलती मान लेते हैं तो अपने इंसाफ के रास्ते को अपनाया होता है। गलती मान लेना। ज़ाती फ़वाइद। गलती मान लेने से फ़र्द को कई ज़ाती फ़वाइद हासिल होते हैं। 1, ज़हनी सुकून। सच बोलने और जिम्मेदारी कबूल करने से अंदरूनी तनाव कम होता है। चिबानी और झूठ बोलने की वजह से जो नफ्सियाती बोझ होता है वो हल्का हो जाता है। 2, शख्सी मूल्य। जब आप अपनी गलती देखते और तस्लीम करते हैं तो आप इससे सीख सकते हैं। गलती की जांच पड़ताल से आप अपनी कमजोरियों को पहचानते और बेहतर बनने का रास्ता ढूंढते हैं। 3, खुद एतमादी में हकीकी बेहतरी। महज अपनी गलती को कबूल करके आप एक मजबूत किरदार जाहिर करते हैं। यही कुन बातनी हकीकी खुद एतमादी की बुनियाद बनती है। 4, गलती के असरात की तलाफी। गलती मान लेने से आप जल्दी से नुकसानात की तलाफी कर सकते हैं। खौफ से छुपाने से वक्त ज़ाया होता है और नुकसान बढ़ जाता है। गलती मानने के समाजी फ़वाद। अफरदी सतह के अलावा गलती मानने के समाजी और ताल्लुकाती फ़वाइद भी बहुत अहम हैं। 1, एतमाद की बहाली। जब आप अपने दोस्त, शरकन हयात, साथी, कारकुन के सामने अपनी गलती तस्लीम करते हैं
तो ये एतमाद बहाल करने का सबसे तेज रास्ता होता है। लोग हकीकत पसंदाना रवैये को कद्र की निगाह से देखते हैं। 2. ताल्लुकात की मजबूती। झूठे बहाने ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि मुआफ़ी मांग कर और गलती मान कर ताल्लुकात फिर से मजबूत हो सकते हैं। ये बताता है कि ताल्लुकात में ईमानदारी और एहतराम मुकद्दम है। 3. मिसाली क़यादत। लीडर्स जो अपनी गलतियां कबूल करते हैं वो टीम के लिए मिसाली होते। आवाज़ किस्म की क़यादत टीम को मसले की शनाख्त और हल करने में बेहतर बनाती है। 4. एक सेहतमंद सकाफ़त की तश्कील। जब इदारे घरानों में गलती मानने को हौसला मिलता है तो लोग तजर्बा करने, सीखने और बेहतरी की तरफ राग़िब होते हैं। ये तरक्की के लिए ज़रूरी है। गलती मानने की आम अक़साम। रोज़मर्रा से पेशा वराना गलतियाँ मुख्तलिफ सतहों पर होती है। छोटी रोज़मर्रा गलतियाँ, ताल्लुक़ाती गलत फहमियाँ, पेशा वराना गलतियाँ और इखलाकी या कानूनी गलतियाँ। हर किस्म की गलती का मुअस्सिर अंदाज में एतराफ़ मुख्तलिफ होता है, मगर बुनियादी उसूल एक ही है: सच्चाई, नदामत और तलाफ़ी का। छोटी कोशिश। मिसाल, घर में किसी वादे को पूरा न करना, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना, काम पर प्रोजेक्ट में गलती, डेडलाइन मिस करना, किसी की मेहनत का क्रेडिट न देना, मुआशरत अफवाह फैलाना, दूसरों का हक मारना, इखलाक/कानूनी गैर कानूनी अमल नुकसान पहुंचाना। उनमें एतराफ़ के साथ कानूनी या इखलाकी तलाफ़ी भी ज़रूरी होती है। गलत मानने का सही तरीक़ा, अमली रहनुमा उसूल। गलती तस्लीम करना एक फ़िन है, इसे मुअस्सिर और बावकार अंदाज में किया जाना चाहिए। झैल में चंद अमली इक़दामात दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप गलती मानने का तरकार बेहतर बना सकते हैं। 1. फ़ौरन कबूल करें। अगर अपने गलती की है तो जितनी जल्दी मुमकिन हो इसे कबूल कर, ताख़िर से हालात बिगड़ सकते हैं और एतमाद मुतासिर हो सकता है। 2. साफ और वाज़े अंदाज में तस्लीम करें। मुबहम इशारे अफरादी बहाने न बनाएं, सीधे सादे अल्फाज में बताएं कि आपने गलती की और कौन सी गलती थी। 3. नादिम महसूस करें मगर खुद को कमतर न करें। सच्ची नदामत दिखाएं मगर ऐसा ना लगे कि आप खुद को हमेशा के लिए कसूरवार ठहरा रहे हैं। मकसद मसले की इस्लाह है, ना मुस्तकिल सज़ा। 4. तौज़ी बमुकाबला बहाना समझी। गलती की पस मंज़र हालात बताना ठीक है, मगर ये बहाना ना बने। फ़र्क यह है कि वज़ाहत मसले की समझ बढ़ाती है, जबकि बहाना ज़िम्मेदारी से ग्रेज़ करता है। 5. तलाफ़ी आज़ाला का वदा करें। जहां मुमकिन हो नुकसान की तलाफ़ी करने इस्लाह की अमली पेशकश कर। मिसाल के तौर पर खसारे की अदायगी, दोबारा काम करना, रवैये में तब्दीली की मंसूबाबंदी। 6. सबक सीखने का इजहार करें। बताएं कि आपने क्या सीखा और आइंदा इसको रोकने के लिए क्या इक़दामात करेंगे। इससे दूसरा फरीक यकीन करना शुरू करता है कि गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। 7. मुआफ़ी मांगे। अगर ज़रूरी हो तो मुआफ़ी एक ताकतवर अमल है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अल्फाज कह देना काफ़ी है। मुआफ़ी के साथ अमल का भी सबूत देना ज़रूरी है। 8. मुस्तकिल बेहतरी की कोशिश करें। गलती मान लेना आगाज़ है। असल कामयाबी तब होती है जब आप मुस्तकिल तौर पर अपने रवैये अमल में बेहतरी लाएं। रुकावटों का हल। जब गलती मानना मुश्किल हो, कभी कभी हालात ऐसी पेचीदगियां लाते हैं कि इंसान मुआफ़ी मांगने से घबराता है। यान सूरतों में झैल के नुकात मददगार साबित होते हैं। 1. खुद शनासी पर काम करें। अपनी अना और खौफों को पहचानें। खुद शनासी से आप बेहतर फैसला कर पाएंगे कि कब और कैसे गलती माननी चाहिए। 2. एतमाद पैदा करें। अपने अंदर की कमजोरियों को कबूल करें। हर इंसान गलती करता है। जब आप इस हकीकत को मान लेते हैं तो तस्लीम करना आसान हो जाता है। 3. दूसरों की कहानियां पढ़ें, सुनें। अजीम लोग भी गलतियां करते रहे हैं। उनकी कहानियां पढ़कर सुनकर आपको हौसला मिलता है कि गलती मानकर भी कामयाबी मुमकिन है। 4. छोटे कदमों से आगाज करें। पहली बार में बड़ा एतराफ़ मुश्किल लग सकता है। छोटी गलतियों से आगाज़ करें और फिर बड़े मामलात में भी ईमानदारी अपना हिमायत तलब करें। कभी कभार किसी काबिल एतमाद दोस्त आ रहे हैं से मशवरा करें कि आप कैसे अपनी गलती का एतराफ़ करें। मशवरा आपके लिए कदम आसान बना सकता है। कायदाना और तंजीमी सतह पर गलती माना क़यादत की दुनिया में गलती मानने का फ़लसफ़ा खास अहमियत रखता है। सियासी लीडर जो अपनी गलतियों का इकरार करते हैं, टीम में यह पैगाम देते हैं कि गलती से सीखना बेहतर है बजाय पोशीदा रखना।
चंद अहम पहलू। एक कल्चर बनाएं जो तजुर्बे को सराहता हो। जब इदारा गलती करने वालों को सजा देने के बजाय सीखने का मौका दे तो इख्तिराई और तजुर्बाती काम को फरोग मिलता है। 2. गलती रिपोर्टिंग के तरीक़ार बनाएं। ऐसी पॉलिसियां बनाएं जहां लोग बगैर खौफ के गलती रिपोर्ट कर सकें ताकि बड़े नुकसानात से पहले मसाइल पहचाने जा सके। 3. लीडर की मिसाल। कायदीन को खुद मिसाल बनकर दिखाना चाहिए। अपनी गलतियां अवामी तौर पर तस्लीम करें और बताएं कि आपने क्या सीखा। 4. मुकम्मल एहतिसाब और शफाफियत। गलती मानने के बाद जो इक़दामात किए जा रहे हों उनमें शफाफियत हो तो इदारे में एतमाद बढ़ता है। गलती मानने के नताइज वक्ती तकलीफ बल्कि तवील मुद्दती फ़वाइद। गलती मानने पर अमूमन वक्ती ज़िल्लत और परेशानी महसूस हो सकती है मगर तवील मुद्दत के फ़वाइद बहुत ज़्यादा होते हैं। मजबूत ताल्लुकात, बेहतर साख, ज़ाती तरक्की और इखलाकी बुलंदी। जो लोग गलती मानने के बजाय इसे छुपाते हैं वो अक्सर देर से ज़्यादा नुकसान उठाते हैं, एतमाद खो बैठते हैं, ताल्लुकात कमज़ोर होते हैं और खुद एतमादी सतह ज़मीन पर आ सकती है। मखसूस मिसाल। रोमानवी ताल्लुकात में गलती मानना शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में गलती मानना शायद सबसे हसास मामला हो। यहाँ मुआशरती गरूर, एहतराम और फ़ख्र सब मुअस्सर होते हैं। चंद मशवरे। जज्बाती तौर पर जितना मुमकिन हो जल्द बात करें। तवील खामोशी गलत फहमी को बढ़ाती है। माफ़ मांगते वक्त महसूस हो बताएं किस बात पर नादिम है और आइंदा का बेहतर करेंगे। जज्बाती तसल्लुत बरकरार रखें। गिरते हुए अंदाज में मुआफ़ी मांगने से फ़र्क पड़ता है मगर खुद को कमतर न करें, अमाल से साबित करें। सिर्फ अल्फाज काफ़ी ना। गलत मानने की मिसालें। तारीखी और मरूफ शख्सियात से। तारीख में बहुत से मुमताज़ लोगों ने अपनी गलतियां तस्लीम की और इसी के ज़रिए अज़मत हासिल की। यहाँ मैं मखसूस हवालों का जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि ये एक इखलाकी मिसाल है मगर आप खुद तहकीक करके कई मुआसिर रहनुमाओं की मिसालें देख सकते हैं। आम तौर पर वो लोग जो अपनी गलतियों से सीखते और एतराफ़ करते हैं अवामी हिमायत और एहतराम दोबारा हासिल कर लेते हैं, जबकि जो लोग दिफा और बहाने अपनाते हैं वो अक्सर तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। गलती मानने का खुलासा और उसूली पैगाम। गलती मानना कमज़ोरी नहीं बल्कि इखलाकी, नफ्सियाती और समाजी ताकत है। ये अमल ताल्लुकात को मजबूत करता, एतमाद बहाल करता और ज़ाती तरक्की के दरवाजे खोलता है। गलती मानने का सही तरीक़ा वाज़ेह, नादिम, अमली और तलाफ़ी पर मबनी होता है। रुकावटें शनाख्त की जा सकती हैं और छोटे अमली इक़दामात से दूर की जा सकती। आवादत और इदारा जाती सतह पर गलती मानने की सकाफ़त तरक्की और सीख को फ़रोग़ देती। ये अमल निकात रोज़मर्रा के लिए एक चेक लिस्ट। अगर आप गलती मानने की आदत पैदा करना चाहते हैं तो ये छोटा चेक लिस्ट रोज़मर्रा में मदद देगा। 1. वाक़या का फौरी जायज़ा लें। क्या वाकई आपकी गलती थी? 2. सच्चाई से बात करें, झूठा बहाने से ग्रेज़ करें। 3. सीधे लफ्ज़ों में मुआफ़ी मांगें, मखसूस और मुख्तसर। 4. नुकसान की तलाफ़ी के लिए अमली कदम बताएं। 5. मुस्तक़बिल के लिए इस्लाही मंसूबा बनाएं और शेयर करें। 6. अपने आप को मुआफ़ करें, खुद पर जुल्म न करें। मुआफ़ी का अमल अंदर से भी होना चाहिए। 7. जो सीखा है इसे नोट करें, आइंदा गलती से बचने के लिए हिकमत अमल तैयार करना चाहिए। हिम्मत की वो रोशनी जो रिश्ते और नफस दोनों बदल देती है। गलती मान लेना एक छोटा सा लम्हा हो सकता है मगर उसके असर देरपा और वसी होते हैं। ये ताल्लुकात को दोबारा जोड़ता है, इदारों को मजबूत करता है और इंसान को अंदर से आज़ाद बनाता है। असल हिम्मत यही है कि हम अपनी कमज़ोरियों को पहचानें, अपनी गलतियों का इकरार करें और फिर उन्हें सुधारने की मेहनत करें। जब फ़र्द और मुआशरा दोनों इस कदर सीख लें कि गलती होना फितरी है और उसका एतराफ़ और इसला बेहतर मुस्तक़बिल का रास्ता है, तब हकीकत में हम इखलाकी और अमली तौर पर कामयाब होंगे। आखिरी अल्फाज में, गलती मान लेना न सिर्फ आपको इंसान बनाता है बल्कि आपको बेहतर इंसान बनाता है। इस अमल को अपनाइए, अपने रिश्तों में ईमानदारी लाइए और अपनी ज़िंदगी को वाज़ेह और पुरअमन बनाइए। हिम्मत की नरम मगर पायदार शक्ल आपकी शख्सियत का सबसे बड़ा ज़ेवर हो सकती है। गलती मान लेने की हिम्मत। तकरीबन अल्फाज। तारुफ इंसानी ज़िंदगी में गलतियाँ नागुज़ीर आओ, चाहे हम जितने होशमंद, मेहनती या समझदार हों। गलत कदम उठाना, नामुनासिब फैसला करना या किसी से टकरा जाना ज़िंदगी का हिस्सा है। मसला सिर्फ गलती करना नहीं होता, असल इम्तिहान ये है कि हम अपनी गलती को किस अंदाज में कबूल करते हैं। गलती मान लेने की हिम्मत न सिर्फ इखलाकी शुजाअत है बल्कि ये ज़ाती नशो, ताल्लुकात की मजबूती और समाजी एतमाद की बुनियाद भी बुनती है। इस मज़मून में हम गलती मानने की अहमियत, इसके मुआशरती और नफ्सियाती असरात, रुकावटें, फ़वाइद, दर अमल और
عملی مشقوں کا تفصیلی جائزہ لیں گے تاکہ قاری کو نہ صرف اس بات کا ادراک ہو بلکہ وہ اپنی زندگی میں اسے اپنانے کی کوشش کر سکے۔ غلط ماننے کی اہمیت۔ غلطی تسلیم کرنا ایک اخلاقی فضیلت ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ فرد میں خود آگاہی، ذمہ داری قبول کرنے کی صلاحیت اور دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنے کی اہمیت موجود ہے۔ جب ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں تو ہم نہ صرف خود کو شفافیت اور سچائی کے راستے پر رکھتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اعتماد کی فضا بھی قائم کرتے ہیں۔ اعتماد وہ سرمایہ ہے جو تعلقات، کام کے میدان اور معاشرتی رفاقت کو قائم رکھتا ہے، اور غلطی تسلیم کرنے سے یہ سرمایہ مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے قیادت اور انسانی روابط کے میدان میں وہ افراد قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کر سکتے۔ نفسیات پہلو کیوں مشکل ہوتی ہے غلطی ماننا؟ بہت سے لوگ غلطی ماننے سے گھبراتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی شخصیت، شان، وقار کے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ خوف عزت نفس، غرور، شرمندگی سے جمع ہو سکتا ہے۔ سماجی تناظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ غلطی تسلیم کرنے سے ہمیں کمزور سمجھا جائے گا، دوسروں کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ لوگ اپنی غلطی چھپانے کے لیے بہانے بناتے ہیں، دوسروں کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہ دفاعی میکانزم ہے جو فوری طور پر تھوڑی تسکین دیتا ہے مگر طویل مدتی نتائج بدنما اور نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض ثقافتوں میں غلطی کو بدنامی کا مترادف سمجھا جاتا ہے، جو لوگوں کو اپنے اعمال پر غور کرنے، نشوونما کے مواقع سے محروم کر دیتا ہے۔ معاشرتی و اخلاقی نتائج۔ جب کوئی شخص اپنی غلطی قبول کر لیتا ہے تو معاشرتی سطح پر متعدد مثبت نتائج جنم لیتے ہیں۔ تنازعات میں کمی، تعلقات میں بہتر رابطہ، ٹیموں میں باہمی تعاون میں اضافہ اور ذمہ داری کا احساس بڑھتا ہے، جبکہ غلطی چھپانے، جھوٹ بولنے سے اعتماد ختم ہوتا ہے، رشتے ٹوٹ سکتے ہیں اور اداروں میں کرپشن، نااہلی پھیل سکتی ہے۔ اخلاقی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو غلطی ماننے سے انسان کی سچائی پسندی اور پاکباز طبیعت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو فرد کو بہتر بناتی ہے اور معاشرے کو مضبوط۔ فالٹ لائنز۔ غلطی تسلیم نہ کرنے کی عمومی وجوہات: 1 غرور اور انا۔ بعض لوگ اپنی انا کی قیمت پر سچائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ 2 خوف نتائج، عہدے کا خطرہ، تنخواہ کا کٹاؤ، سماجی بدنامی کا خوف۔ 3 مجازی ذمہ داری، لوگ اپنی ذمہ داری ظاہر نہ کرنے کے لیے دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ 4 غلط فہمیاں، بعض اوقات انسان حقیقت کو غلط سمجھ لیتا ہے اور غلط فہمی میں جھوٹ بولتا، دفاع کرتا رہتا ہے۔ 5 عادی رویہ، مدتوں سے قائم رویے جب عادت بن جائیں تو انہیں بدلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ غلطی مان لینے کے فوائد: خود شناسی اور ترقی۔ غلطی قبول کرنے سے فرد اپنی خامیوں کو پہچان کر ان پر کام کر سکتا ہے، یہ خود کی بہتری کا پہلا قدم ہے۔ 2 تعلقات کی مضبوطی، جب آپ معافی مانگتے ہیں تو دوسرا فریق محسوس کرتا ہے کہ اپنے اس کی قدر کی، اس سے رشتے میں قربت اور احترام بڑھتا ہے۔ 3 مسائل کا مستقل حل، وقتی بچاؤ کی بجائے مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا ہے جس سے طویل المدتی نقصانات روکے جا سکتے ہیں۔ 4 اعتماد کی بحالی، ایمانداری سے کیے گئے اعتراف سے اعتماد بحال ہو سکتا ہے جبکہ جھوٹ سے اعتماد ہمیشہ کے لیے ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ 5 اخلاقی اور روحانی سکون، دل کے بوجھ کم ہوتے ہیں اور انسان کو اندرونی سکون ملتا ہے جب وہ سچ کا سامنا کرتا ہے۔ غلطی تسلیم کرنے کا ترکار، عملی رہنما اصول: 1 فوری تسلیم، جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ نے غلطی کی ہے تو فوراً اسے مان لیں، دیر محسوسات اور نتائج کو بڑھا دیتی ہے۔ 2 واضح اور مختصر اعتراف کرتے وقت صاف الفاظ میں بتائیں کہ آپ نے کیا غلط کیا، الجھن مبہم بیانات سے بچ۔ مثال کے طور پر، میں نے یہ قدم غلط اٹھایا کیونکہ اسے جملہ شروع کریں۔ 3 مکمل ذمہ داری قبول کریں، دھڑلے سے یہ نہ کہیں کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کریں، اس طرح کی زبان دفاعی محسوس ہوتی ہے، اس کے بجائے سیدھے طور پر کہیں میں جان بوجھ کر غلطی سے اس طرح کیا اور مجھے افسوس ہے۔ 4 معذرت اور ہمدردی، سچے دل سے معافی مانگیں اور سامنے والے کے جذبات کو تسلیم کریں، یہ دکھائیں کہ آپ اس کی تکلیف اور نقصان کو سمجھتے ہیں۔ 5 اصلاحی قدم بتائیں، یہ بتائیں کہ آئندہ آپ کیا کریں گے تاکہ وہ غلطی دوبارہ نہ ہوئی۔ مل منصوبہ اور وعدہ اعتماد بحال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ 6 اگر ممکن ہو تو تلافی کریں، نقصان کا ازالہ کریں، مؤثر طریقے سے جتنا ہو سکے نقصان پورا کریں۔ 7 برداشت کریں،
एतराफ़ के बाद मुमकिन है कि फौरी मुआफ़ी ना मिले, इसे कबूल करें और वक्त दें। बर्बारी और मुस्तकिल मुस्बत रवैया बहुत मानी रखता है। मिसालें रोज़मर्रा ज़िंदगी से। एक तालीमी इदारा। एक तालिब इल्म ने ग्रुप प्रोजेक्ट में हिस्सा ना लिया मगर आखिरी लम्हात में दूसरों के काम का सहारा लिया। जब सच सामने आया तो तालिब इल्म ने अपने अमल का एतराफ़ किया, मुआफ़ी मांगी और अगले प्रोजेक्ट में इजाफी जिम्मेदारी कबूल कर ली। ये रवैया इसकी साख बहाल करने में मददगार साबित हुआ। दो दफ्तर का मंजर। किसी मीटिंग में गलत अदाद और शुमार पेश किए गए तो मैनेजर ने फौरन गलती तस्लीम की, दुरुस्त डेटा पेश किया और टीम को बताया कि आइंदा हम डेटा रिव्यू का इजाफी मरहला शामिल करेंगे। इससे टीम का एतमाद बहाल हुआ और अमल मजीद मजबूत हुआ। टीम ज़ाती रिश्ते। किसी मोहब्बत करने वाले ने गैर मुनासिब तबसरा करके दिल दिखाया। इसने फौरन माजरत की, अपनी गलती की वजाहत की और रिश्ते में बेहतरी के लिए मुशावरत का वक्त नतीजा ये हुआ कि दोनों के रवाबित पहले से पुख्ता। ये सकाफत और दीनी नुक्ताए नज़र बहुत सी सकाफतों और मज़ाहिब में गलती माने और मुआफ़ी मांगने की अहमियत को उजागर किया गया है। इस्लाम, ईसाईयत, हिंदूमत और दीगर मजहबी तालीमात में एतराफ़, तौबा और इस्लाह को बहुत अहम समझा जाता है। ये सिर्फ इखलाक़ी ज़ाब्ता नहीं बल्कि रूहानी सफाई का ज़रिया भी माना जाता है। मुआशरे में जहाँ मुआफ़ी और इस्लाह को कदर की निगाह से देखा जाता है, वहाँ लोगों में जिम्मेदारी और इंसाफ का जज्बा ज़्यादा होता है। लिहाजा गलती मान लेना न सिर्फ ज़ाती बल्कि समाजी और रूहानी तरक्की का ज़रिया भी है। काबू पर अमली तौर पर काबू पाना। टिप्स। एक अना का इलाज। अपनी अना को काबू में रखने के लिए रोज़ाना खुद एहतिसाबी करें, छोटी गलतियों को भी नोट करें और उनसे सबक लें। दो खौफ नताइज का मुकाबला। नताइज के खौफ को मंतकी अंदाज में परखें। अक्सर देरपा नुकसान खौफ के मुकाबले में कम होता है। मुमकिना मुस्बत नताइज। एतमाद में इजाफा, ताल्लुकात की बेहतरी को जहन में रखें। तीन बातचीत तकनीक सीखें। जिम लू का इंतखाब अहम है। दिफाई लहजे के बजाय शफाफ और नरम लहजा इख्तियार करें। चार मुआफ़ी को अमल बनाएं। सिर्फ लफ्ज़ी मुआफ़ी काफ़ी नहीं, अमली तब्दीली क्या सबसे मुअस्सिर ज़रिया है एतमाद बहाल करने का। पाँच मदद तलब करें। अगर गलती का एतराफ़ करने में मुश्किल हो तो किसी काबिल एतमाद दोस्त या मुशीर से मशवरा कभी बहादुराना एतराफ़ के लिए बाहर से हिमायत मुफीद होती है। मामूराना हालात और लीडरशिप में गलती तस्लीम करना कायदीन के लिए गलती मान लेना एक ताकत की अलामत है। एक अच्छा लीडर वो है जो अपनी गलतियों से सबक लेता है, शफाफियत बरकरार रखता है और टीम के सामने मुआफ़ी और इस्लाह के रास्ते दिखाता है। इस तरह का रवैया टीम के अंदर मुस्बत सकाफत कायम करता है, जहां लोग गलती करने के खौफ के बगैर सीखने की जस्तजू रखते हैं। इसके बरक्स जब लीडर गलतियां छुपाता है या दूसरों पर इल्ज़ाम डालता है तो वहां खूफी माहौल बनता है जो तख्लीकी सलाहियतों और कारकर्दगी को मफलूज कर देता है। गलती मान लेने की आदत। रोज़मर्रा मशक़ें। एक रोज़ाना का जायज़ा। दिन के इख्तिताम पर मुख्तसर खुद एहतिसाबी करें। क्या मैंने आज कोई ऐसी बात की जिस पर शर्मिंदगी है? अगर हाँ तो अगले दिन इस्लाह का मंसूबा बनाएं। दो शुक्रिया और मुआफ़ी की फहरिस्त। जिन लोगों को अपने गलती से मुतासिर किया उनकी फहरिस्त बनाएं और मुमकिना तौर पर राब्ता करके मुआफ़ी मांगें। तीन सीखने का जश्न। अपनी गलतियों से ली गई अहम दर्स नोट करें ताकि वो दोबारा ना हो। चार मुस्बत रवैया अपनाना। गलती को फीलियर नहीं बल्कि फीडबैक समझिया फितरी अमल है जो आपको मजबूत बनाता है। नतीजा और हतमी कलिमात। गलती मान लेने की हिम्मत सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक तर्ज़ फ़िक्र है। ये इनफरादियत, शुजाअत, सच्चाई और इस्लाह के लिए अज़्म की नुमाइंदगियाँ हमें बताती है कि हम कामिल नहीं मगर बेहतर बन सकते हैं। जब हम अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हैं तो हम अपने अंदर और अपने अतराफ़ के लोगों में एतमाद, सुकून और एहतराम की फ़िज़ा कायम करते हैं। याद रखें, गलती से बचना मुमकिन ही नहीं मगर उसका एतराफ़ करना मुमकिन और लाजिम है। जो लोग अपनी गलतियों को छुपाते हैं वो वक्ती तौर पर बच निकल सकते हैं मगर देर पा कामयाबी, दिल की सुकून और बावकार रिश्ते सिर्फ इसी को मिलते हैं जो सच्चाई और शफाफियत के साथ ज़िंदगी गुजारता है। अमली दावत चैलेंज। आखिरी रब्त के तौर पर मैं क़ारीन को एक छोटा चैलेंज पेश करता हूँ। आइंदा 7 दिनों में कम अज़ कम एक ऐसी गलती का एतराफ़ करें जिसे आपने पहले छुपाया या नज़रअंदाज किया हो। हर एतराफ़ के साथ एक छोटा कदम उठाएं जिससे इस गलती का अज़ाला मुमकिन हो। इस तजुर्बे का मुशाहिदा करें। आपके अंदर कैसा सुकून आया? दूसरों का रवैया कैसा था?
یہ مشق آپ کو غلطی ماننے میں آسانی دے گی اور اخلاقی قوت میں اضافہ کرے گی۔ خلاص کلام، غلطی ماننے کی ہمت ایک خوبصورت انسانیت ہے، چوٹ کھانے کے بعد مرہم رکھنے کے مترادف ہے۔ نہ صرف تعلقات کو جوڑتی ہے بلکہ فرد کو بھی بہتر بناتی ہے۔ اس کی مشق ہمارے سماجی، پیشہ ورانہ اور روحانی زندگی کو بہتر بناتی ہے۔ آئے ہم سب اس ہمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے دلوں کی سچائی کو سامنے لائیں اور غلطیوں سے سبق لے کر بہتر انسان بننے کی کوشش کریں۔ ختم شد ہوں گے آخری الفاظ میں، غلطی مان لینا نہ صرف آپ کو انسان بناتا ہے بلکہ آپ کو بہتر انسان بناتا ہے۔ اس عمل کو اپنائیے، اپنے رشتوں میں ایمانداری لائیے اور اپنی زندگی کو واضح اور پرامن بنائیے۔ ہمت کی نرم مگر پائیدار شکل آپ کی شخصیت کا سب